नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समाचार 24 में। आज का जो मेरा शो है वो है एजुकेशन पे। एक सोसाइटी का ऐसा मुद्दा जिस पे हमें बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। तो उसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे माउंट हिल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर प्रिंसिपल और सीबीएसई बोर्ड के सिटी कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनुज यदुवंशी सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। आपका भी इतने बहुत बिज़ी बहुत धन्यवाद सर कि एक्चुअली कल मैंने आपसे बात की तो आप बड़ा बिज़ी थे पर फिर नहीं भी हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत थैंक नहीं यू। नहीं, मेरा भी सौभाग्य का विषय है कि मैं आपके थ्रू व्यूअर से बात कर पाऊंगा। एक्चुअली मैंने आपके बारे में थोड़ा-सा पढ़ा, तो जिस इंस्टीट्यूट में आज हम बैठ के ये शूट कर रहे हैं, उसी इंस्टीट्यूट में आपने ये किसी और नाम से हुआ करता था, वो जी जी। एक्चुअली मैं ऑन कैमरा बोल नहीं सकता। उसमें एज़ अ टीचर आपने जॉइन किया था। उसके बाद से उस इंस्टीट्यूट के एज़ अ डायरेक्टर प्रिंसिपल बनना, वो जो लाइफ़ थी आपकी, वो जर्नी थी, वो एक्चुअली हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, आपने बिल्कुल सही सुना और पढ़ा जहाँ भी है। इस विद्यालय का इवन कंस्ट्रक्शन भी मैंने ही करवाया था और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसी विद्यालय के अंदर मैंने सोशल स्टडी एज अ सब्जेक्ट टीचर पढ़ाया। इसी विद्यालय के अंदर साइंस एज अ सब्जेक्ट टीचर मैंने पढ़ाया। उसके बाद इसी विद्यालय में मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी जॉब किया। लगभग जैसे बच्चा माँ के घर में 9 महीने रहता है, ऐसे 9 महीने तक मैंने इस विद्यालय में काम किया और 9 महीने के बाद फिर ये विद्यालय मैंने छोड़ दिया था। इस तरीके से वो प्रयास करके फिर एक बहुत बड़े एक ऐसे विद्यालय को ज्वाइन किया। जर्नी थोड़ी इस तरीके की है कि आई वाज गोइंग बैक टू माय दिल्ली इंस्टीट्यूशन। आई हैव वर्कड विद लवली एजुकेशन ग्रुप ऑफ स्कूल्स दैट वाज इन दिल्ली ओनली. So I plan to go back from here to Delhi actually, and ultimately I don't know where the destiny wants to take you. It's always been decided by the destiny only. This highway is very near to my home, but in fact I have not taken up this highway to go to Delhi. I have chosen the way which is from the city itself, and that way took me to Kanamakhana actually. And there, like, I had a word with my brother. He was co-driver at that time with me, and I told him, like, it's a new school in Mathura which is famous for AC actually. So we thought of that we will go and visit the school. And there, like, once when we visited it, and my brother told me, कि भैया, like, it's too late now, it's better we will go tomorrow to Delhi. And we have visited the school in fact, and I had an interaction with Mr. Anup Sharma and with Mr. Anil Agarwal. And at the same time I requested them, like, we want to visit the school because it's quite famous for AC. So I just want to have an acquaintance that how AC school works basically. So he has allowed me in fact to visit the school. And then when I have come back, my brother, like, in fact sir asked me, like, in case if you're interested, then you can serve this institution also. Then on 12th December 2002 I have joined Kanamakan. So it was altogether 22 years I worked with Kanamakan. There, like, in between I got an opportunity where, like, I thought of that I should start something of my own. And it is my destiny, the place from where in Mathura I started my career. That institution I'm serving as director now. So, like, I'm thanks to Almighty, and it's all together the support of the all the well wishers who have come across in my life. They have guided me, they have given me a courage, they have boosted my morale, and they said, like, sir aap kar sakte hain. So, like, it is their thought, it is their good wishes which make me to decide, yes, शायद मैं भी कर सकता हूँ. So then I started up अच्छा that. सर, जब खुद आप स्टूडेंट्स थे, स्कूलिंग में थे, कॉलेज में थे, तो एक्चुअली आपको फ़ील होता था कि मैं ना सिर्फ़ स्टूडेंट्स का मतलब इतने सारे टीचर्स का भी मेंटर बनूँगा? किस तरह के स्टूडेंट्स थे आप? Like, I was a mediocre student. I passed my 12th with 69% marks with PCM only. And I did engineering from very good college of India, that is Motilal Nehru Regional Engineering College. And after that, I have in fact joined HAL, Hindustan Aeronautics Limited. So altogether that I served them. But anyhow, that something has happened in the life which took me back to the Mathura only. And there, like, from here my father sent me to Mount Abu. There is a school in Mount Abu where, like, that school belongs to my father friend actually. So my father sent me to that school, and there again the same destiny. I served that place only for 8 to 9 months only, and from there, like, I decided I should do something like of my own choice. So
whether you believe or you don't believe, I don't know about it, but like something which I want to share, which in fact I have shared with only 2% in my life. You would be the third one whom I am sharing this. My father got retired in 1991, right? And my father's last posting was at Babina, which is near to Jhansi. There, like when my father got retired, तो जैसे बच्चे आपस में डिस्कशन नहीं करते कि नई जगह जाएंगे, वहां मेरे पापा मेरा एडमिशन कराएंगे। आप ताजुब करेंगे कि मैंने वहां अपने दोस्तों को, जैसे आप बड़ा बड़ा नहीं बोलते दोस्तों के सामने, तो मैंने बोला मेरे पापा अब ऐसे स्कूल में एडमिशन कराने वाले हैं मेरा जिसमें हर क्लास में कंप्यूटर है। एंड लाइक इन 1991 to thought of the computer system in a classroom, which would be something which is impossible, but like I don't know how come it comes into my mind, where like in books somewhere we have read only कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज होती है, और वो मैं अपने दोस्तों से बोल गया इस बात को, ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, बड़ा चढ़ा के बोलने के चक्कर में। और देखिए लाइफ ने ऐसा टर्न लिया कि वो मेरी, मतलब ना हो आज की डेट में मुझे अगर क्लासरूम में इस तरीके की टेक्नोलॉजी ना हो तो पढ़ाने में मजा आता है, ना ये समझ पाता हूँ कि ये कैसे उस नीड को पूरा कर रहा है टीचर इस समय उठा करके। तो शायद वो स्टेटमेंट, शायद वो सारी चीजें मैंने सबकॉन्शियस माइंड से बोली थी, परंतु शायद वही मेरी डेस्टिनी थी एक्चुअली। तो वो चीज ही आज ट्रेवल करते करते मैं उसी रास्ते पे चल रहा है। अच्छा, आजकल पेरेंट्स है, उनके बच्चे का जन्म होता है वो तभी से सोचना शुरू कर देते हैं कि कौन से स्कूल में पढ़ाएं, किस तरह का स्कूल होना चाहिए। तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है कि कैसे एक अच्छा स्कूल सेलेक्ट करें? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, पहली बात, क्योंकि जब इसमें भी देखिए दो तरीके की सिचुएशन के साथ हम लोग डील करते हैं। एक तो होता है घर का सबसे पहला बच्चा, और घर के सबसे पहले बच्चे के लिए जब स्कूल ढूंढा जाता है ना, तो पेरेंट्स, अगर इसको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अच्छा, इसमें क्या होता है, देखिए हम इसको 3 जनरेशन में स्कूल को क्लासिफाई करते हैं। हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन पेरेंट, सेकंड जनरेशन पेरेंट और थर्ड जनरेशन पेरेंट। फर्स्ट जनरेशन पेरेंट वो होता है जो पहली बार किसी पब्लिक स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने निकलता है। सेकंड जनरेशन पेरेंट वो होता है जो खुद पढ़ा लिखा है और वो कोशिश कर रहा है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। और जो थर्ड जनरेशन पेरेंट होता है वो, उसका मतलब वो खुद भी पढ़ा लिखा होता है, उसके पापा भी पढ़े लिखे होते हैं, अब उसके बच्चे का टर्न आया है। तो जब ऐसा पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढने निकलता है तो उसकी चॉइस ये होती है कि स्कूल बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहा है। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स के क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ऐसा पेरेंट, थर्ड जनरेशन पेरेंट, जब भी अगर किसी स्कूल को अप्रोच करेगा वो उससे पहले वो उसका पूरा मार्केट एनालिसिस कर लेता है। इधर लाइक वो नेबरहुड में डिस्कशन करके, चाहे वो उस स्कूल के टीचर्स को इनडायरेक्टली कहीं से भी कनेक्ट करके, या फिर उस स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ के जा चुके हैं उन बच्चों से कनेक्ट करके। और वो जब स्कूल में आकर के प्रिंसिपल से जब बात करेगा ना, ही विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द फीस, he will not going to talk about anything else or concession, rebate, discount. He will not going to talk about that. He will going to talk about that like how much my child is safe in the institution and what kind of education is being imparted in the school, what's your method of teaching, what's your pedagogy been adopted, and like what's your homework policy. Means like his entire discussion is academic discussion. And when you come across with the first generation parent, for them like your question stands good, because for them my suggestion is to them that instead of talking about the concession, rebate, discount, it's better like there are the schools which are charging very much high, but it may be possible they may not be imparting good education. So for that, it's your right, you can talk about the concession also, you can talk about other things also, but better like first you should find it out the repo of the institution and the quality of principal also, because the management, the administration, the directors, the promoters, the managers, their job is to build the infrastructure only. Their job is not to create the atmosphere for quality education. That atmosphere is being created by the principal only. So it's my humble request or the suggestion or the advice to the parents, try to find it out the stability of the principal in the school and have a word with the principal once. You will get the insight
of the principal, then you can better decide, like my school, my son's school or my daughter's school is a good school, not like only thinking about the basic infrastructure or the infrastructure or the facilities being extended by the school, because these all are tools, and when tool, you must know who is operating upon the tools. So if the person who is capable of handling the tools, he can make a good use of tools also. So for that, like I suggest that you can have one-to-one interaction with the principal definitely, because generally I have seen the parents, they have come across with the reception and they get satisfied with that, and the school which are handing over them brochures, prospectus, they even don't look into it. Once you must read the prospectus also, it will give you a deep insight. जैसे आपका बुक पढ़ते हैं, आपने कोई बुक देखी होगी, बुक के ऊपर पहला पेज होता है जिसको हम प्रीफेस कहते हैं, और प्रीफेस ये डिफाइन कर देता है कि एग्जैक्टली बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो वही सारा चीज है कि बोलते हैं ना, मजमून डिफाइन कर देता है कि लिफाफे में क्या, उस तरीके की कुछ बात है ये। अगर आपने प्रोस्पेक्टस को भी पढ़ी है, वहां जो लोग बैठे हैं उनको एक बार साइलेंटली ऑब्जर्व करके देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये बेहतर स्कूल मेरे बच्चे के लिए है या नहीं है। एक्चुअली बच्चे ने एडमिशन लिया नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, मेरे हिसाब से 6 से 7 घंटे तो वो स्कूल में है। फिर वो आएगा बेचारा, खाना खाएगा, फिर आजकल एक ट्रेंड है कि कोचिंग्स में और भेजना है। 3 से 4 घंटे वहां निकल गए, आने के बाद खाना खाया, होमवर्क किया, बच्चा सो गया। उसका वो फिजिकली डेवलपमेंट कैसे होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअल में इस चीज के लिए भी भारत सरकार बहुत एक्टिव है इस समय, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी लिया है। जो इस समय रिसेंटली एनईपी को अगर आप पढ़ रहे हैं, इसके बहुत सारे फेजेस हैं। ये भी फर्स्ट फेज से हम और आप गुजर रहे हैं। इसका जब सेकंड फेज और थर्ड फेज इम्प्लीमेंटेशन पर आएगा ना, तो आपको इन सब चीजों के लिए बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारा सिलेबस है, करिकुलम बाद में बात करेंगे, जो हमारा सिलेबस है ना, वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि बच्चे की नीड से ज्यादा हम सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअल में। क्योंकि अब आप इसमें पूछ सकते हैं कि सर नीड से ज्यादा क्यों, क्योंकि हर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है मेरे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, और आप कह रहे हो कि नीड से ज्यादा सर्व करने की बात करें, तो मेरा ये कहना है, एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं क्षमता, एक्यूमेन। अगर किसी बच्चे का एक्यूमेन और इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर चीज का नहीं है, अब उसे मैंडेटरीली जबरदस्ती हम उस बच्चे को हम मैथमेटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, और बच्चे का एक्यूमेन बायोलॉजी का है, अब यार उसको बायोलॉजी पढ़ाते तो ज्यादा बेहतर करता, उसका इंटरेस्ट आता, उस चीज को अच्छा कर पाता। सिलेबस की लेंथ एंड ब्रेथ इतनी ज्यादा करके रख रखी है जिसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। अगर उस पर ध्यान दिया गया जाता तो हम बोलने के लिए 365 और 366 दिन बोलते हैं एक साल के अंदर, पर क्या स्कूल वर्किंग कैलेंडर के अंदर 365 366 दिन होते हैं? स्कूल कैलेंडर मैक्सिमम 222 डेज से में खत्म हो जाता है, जिसके अंदर की आपके पास कितनी बार एग्जाम्स होते हैं सर, तो आपके पास टाइम कहाँ है? तो बच्चे के ऊपर जो लोड की बात आप कर रहे हैं ना, वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर लोड। उसको जबरदस्ती स्कूल में प्रेशर डाल करके उस सिलेबस को, फिर लोड शेयरिंग के नाम पर होमवर्क, और लोड शेयरिंग के नाम पर जो होमवर्क कराया गया, हर पेरेंट्स, हर फैमिली के पास इतना टाइम नहीं है, वो उसको खत्म कराने के लिए ट्यूशन की हेल्प लेना। बड़ा बुरा, बहुत अजीब सा लगता है, बुरा भी शब्द बोल सकता हूँ। ये लगता है कि जब बच्चा सामने से निकलता है, नर्सरी क्लास का बच्चा, कि कहाँ जा रहा है बेटा इस समय के साथ ट्यूशन, अब नर्सरी में ट्यूशन पढ़ने के लिए क्या जाएगा एक्चुअली, where like his thinking skills needs to be enhanced, he cannot be taught actually। उसको तो खुले पंछी की तरह छोड़ दें तब वो समझे। जब वो खुले पंछी की तरह रहेगा तो सर, जब उसे खाना खाना, जब खाना खा लेगा, जब एक्सरसाइज करनी है तब एक्सरसाइज कर लेगा। पंछी को ऑब्जर्व करके देखिएगा सर, जब उसे कंसंट्रेट करना होता है तो एक जगह बैठ जाता है आकर के, जब उसे खाना होता है तब वो अपने खाने की तलाश में निकलता है, खाना लेता है, जब उस तलाश में निकलता है तो सर वो मूव करता है, तो वो इसका एक्सरसाइज का पार्ट होता है। इसलिए सारी बीमारियों से तो हम ही ग्रसित हैं, जीव जंतु तो आज भी सुरक्षित है इस सब चीजों से उठा करके। तो ऐसे ही सिलेबस के अंदर सबसे पहला, अगर कहीं कोई एजुकेशनलिस्ट कुछ कर सकता है, तो सबसे पहले जो लिबर्टी सीबीएसई ने टिल 8 स्टैंडर्ड स्कूल्स को दे रखी है 8 तक, कि आप अपना सिलेबस डिजाइन करिए, आप अपना सिलेबस से अपना करिकुलम डिजाइन करिए, अपनी करिकुलम डिजाइन करके अपनी इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस डेवलप करिए, सर उसको स्कीज करिए, छोटा करिए, ऐसा माहौल क्रिएट करके लेकर के आइए। किसने कहा कि सर रोज 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं? आप सर एक दिन में 2 और 3 सब्जेक्ट पढ़ाइए। ब्लॉक शेड्यूलिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें ब्लॉक्स बनाइए, 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ाइए, एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट करिए जिसमें बच्चे को बिंदास खेलने दीजिए सर। उसका जो मेंटल ग्रोथ है, जो उसका फिजिकल ग्रोथ है, भाई मेंटल ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ से आती है सर। अगर बच्चा उठ नहीं पा रहा, चल नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा, भाग नहीं रहा, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी मेंटल ग्रोथ अच्छी होगी?
तो पहले वो एनवायरनमेंट, सबसे पहला बीज स्कूल डाले उसमें। जब वो बीज डल जाएगा तो अब उसमें पानी देने का टाइम आएगा तो पेरेंट्स डालेंगे पानी। जब बच्चा जाकर कहेगा कि मम्मा मेरे को इंटरेस्ट इस चीज में आता है, पापा मेरे को ये गेम खेलना है, तो ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं है सर जो बच्चे ने अगर कोई डिमांड की है, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल के बोझ से दबता है जाकर के। जब उसे लगता है कि यार ये एक्सपेक्टेशंस है और उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वो खुद पहले लगता है, और जब नहीं कर पाता है तो फिर वो टीचर्स ट्यूटर्स की हेल्प लेता है, उसे कराता है। उस चीज में सबसे बड़ा नुकसान किस चीज का होता है? जो बच्चे का लेजर टाइम है, जिसको एंटरटेनमेंट का टाइम कहा जा सकता है, बच्चे का एडुटेनमेंट का टाइम कहा जा सकता है, उसमें केवल एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, एजुकेटमेंट भी है। मैं आपके घर जा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, 4 बातें आपकी सीख रहा हूँ, 4 बातें अपनी सिखा के आ रहा हूँ, वहां गिरता हूं तो उठना सीख रहा हूँ, खेल रहा हूं तो खिलाना भी सीख रहा हूँ, साथ रहना सीख रहा हूँ। आज की डेट में बच्चा दूसरे को अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने बेडरूम में डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। इवन रिलेटिव्स आ जाते हैं तो वो उनको एक दिन तो समझ पाता है, उनका कोई बच्चा उसके बेडरूम में अगर शेयर करना पड़ जाए तो उसे एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। क्या कारण है? क्योंकि खेलने नहीं जा पा रहा है। आपको अपने दिन याद होंगे अगर अच्छे से, कि एक तो बैट लाता था, एक बॉल का अरेंजमेंट करके लाता था, कुछ लोग विकेट्स का अरेंजमेंट करके लेकर के आते थे। अगर विकेट्स नहीं होती थी तो किसी पेड़ की डाली काट करके 3 विकेट गार्ड करके हम सारे मस्त होकर के खेलते थे। तो उसमें एक दूसरे के प्रति भावना थी, प्रेम था, सब कुछ था। वो कहाँ है आज की डेट में? किस एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं? कहाँ तो सिलेबस की बात कर रहे हैं, कहाँ करिकुलम की, कहाँ पेडागोजी की, कहाँ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस की। मैं कह रहा हूँ बेसिक्स ही इनकम्प्लीट है अभी। पहले छोटा सा अच्छा कम खाइए सर, अच्छा खाइए, बेहतरीन खिलाइए बच्चे को, जिससे बच्चे को समय मिले। मैं हर एक जगह जब मेरे को कहीं बोलने का मौका मिलता है तो मैं हर एक से कहता हूँ, अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो माँ सरस्वती की मूर्ति को देख ले। माता सरस्वती की मूर्ति में 4 हाथ हैं सर। एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में कमल है, एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में माला है सर। ये पूरी एजुकेशन है सर अपने आप में। यानी ये चीज ये भी बताती है, अगर हम मैथ्स के दृष्टिकोण से देखें तो 100% का 25-25-25-25% है। यानी किताब का रोल केवल जिंदगी में माँ सरस्वती बोलती है केवल 25% है। वीणा इस बात का द्योतक है कि जिंदगी में म्यूजिक होना चाहिए। म्यूजिक किसी भी चीज का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे गाना आए, मुझे कोई यंत्र तंत्र बजाना आए, नहीं सर। म्यूजिक का मतलब अगर लाइफ में भी इंजॉय कर रहा हूँ, वो भी तो एक म्यूजिक है अपनी लाइफ में। मेरे को नेचर के प्रति प्यार होना चाहिए, जब भी तो हाथ में कमल है। माता इस बात का संदेश दे रही है कि नेचर से प्यार करो, नेचर को एंजॉय करो, नेचर के प्रति कुछ करो। और फिर साथ में माला, माला ये बताती है कंसंट्रेट करो, जिंदगी में जो भी कुछ करना है उसके प्रति एकाग्रचित हो जाओ। चाहे खेलना ही है पर मन लगा के खेलो। स्थिति बिल्कुल विपरीत है, टीवी के सामने बैठ जाए तो चैनल चेंज करते रहते हैं। ग्राउंड में ले जाइए तो वो ग्राउंड के गेम छोड़ करके दूसरी चीजों पे फोकस करना शुरू फोन कर हो रहा देते। है आजकल। फोन और आ गया, एक ऐसा इमोशनलेस व्यक्ति जिंदगी में जुड़ गया है जो कोई भी चीज इमोशन की नहीं सिखा रहा है। तो ये सारी चीजें एक अजीब सी स्थिति में हम और आपको लेकर के जा रही हैं, तो इसमें चेंज की जरूरत है। एक्चुअली बुक्स की अभी बात चल रही थी, मैंने खुद ये फील किया है कि बच्चा फर्स्ट क्लास में आया, वो सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख रहा है, पर ग्रामर्स की मोटी मोटी बुक्स उसे दी गई हैं। तो ये भी तो स्कूल्स को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं आपको कह रहा था कि पता नहीं कहाँ हम किस दुनिया में है इस समय, और एक अनहेल्दी कंपटीशन की दुनिया में है जो मैं फील कर पा रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि मेरा मन तो कह रहा है कि इधर ऐसी पुस्तकें, उस जगह सर जिन किताबों की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, जिन किताबों की बात कर रहे हैं उनकी जगह पंचतंत्र लगनी चाहिए सर। बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो ग्राफिक बेस्ड नॉवेल्स होते हैं, उनमें ग्राफिक्स बने होते हैं, उनमें जो स्टोरी होता है, मॉरल होता है, वो मॉरल जिंदगी को कहीं ना कहीं बनाने के काम आता है। और आप देखेंगे ना, जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हैं, अगर आप ग्राफिक बेस्ड पंचतंत्र बेस्ड होगा ना, तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत तगड़ा आएगा बच्चे का। और हमें एक्चुअल में सिखाना क्या है, 1 to 5 जो है हमारी जिंदगी की प्रिमिटिव स्टेज है। प्रिमिटिव स्टेज में हम बच्चे की कैरियर बिल्डिंग, बच्चे की मॉरल बिल्डिंग, बच्चे का बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जिनको हम क्रिएट कर रहे हैं। हम उसे उलझा किस में रहे, हम किस में उलझा रहे हैं? कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अरे वो सब जिंदगी का एक टाइम आएगा जहां वो इस सभी कंपार्टमेंट को खुद ही क्रिएट कर देगा। पर अभी दौर किस चीज का है? जिस चीज की इंस्टिंक्ट भगवान ने देके भेजी है हमको, और वो इंस्टिंक्ट हमको दी है भगवान ने बोलने की। भगवान ने, अगर भगवान की दी हुई गिफ्ट होती तो हम सबको लिखना आता पैदा होते ही, पर भगवान ने हमें सबसे पहली इंस्टिंक्ट दी बोलने की। तो हमें बच्चे की बोलने की स्किल्स को सबसे पहले डिफाइन, उसको एनहेंस करना है, क्योंकि वो नेचुरल है और वो बहुत जल्दी हो जाएगी। और जब बोलने की स्किल्स में हम वर्क करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, प्रिमिटिव स्टेज में उसकी नर्व्स को मार रहे हैं, उसके हाथ में पेंसिल दे रहे हैं जो अननेसेसरी एक प्रेशर एग्जीग्रेट कर रही है, कहीं ना कोई ऑप्टिक नर्व क्रैश हो रही है उससे, और वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे। उसके बदले अगर आप उसके फ्री छोड़ दें, जहां मन आए वो काम उसको करने दें,
और ये इतनी मोटी किताबों की आवश्यकता नहीं है सर। मैं अभी इसको अपनी बात से कनेक्ट करता हूँ कि अनहेल्दी कंपटीशन की मैंने बात की थी। एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ कर रहा, पर मेरा नेबरहुड स्कूल इस काम को नहीं कर रहा। अब मेरे बच्चे, जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ने आया है, उसका ड्रीम स्कूल तो वो वाला है, ये ड्रीम स्कूल नहीं है। ये वो स्कूल उसका ड्रीम स्कूल है। अब उसको यहाँ से जाना उसी स्कूल में है। अब मेरे यहाँ स्कूल में तो मैंने पंचतंत्र लगा रखी है। अब जो उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा ना, वो उसी बुक के बेस पे होगा, और बच्चा क्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये जो बैठा स्कूल है, ये चाह करके भी उस किताब को नहीं लगा पाता। तो मैं कहता हूँ इस डर से बाहर निकलिए, और एक किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ऐसी किताबें लगाइए जहां बच्चे के पास कंटेंट, जो उसकी नीड है एक्चुअल में, वो वाला कंटेंट डिलीवर हो, और उसको अपने तरीके से उसको, मतलब कंटेंट को क्यूरेट खुद करो। जब आप उस पर खुद काम करेंगे, यानी सिलेबस को करिकुलम टीचर बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है, तो you should be a part of a team who will go to convert your syllabus into the curriculum, and then from curriculum to the beautiful ways of imparting those things among the students. उस पर काम करिए, देखिए जो आप चाह रहे हैं वही होगा। एक्चुअली आजकल मैंने सिस्टम देखा है कि छोटी क्लास में टीचर ने कुछ पढ़ाया, बच्चों ने उसे नोट डाउन किया, मैम ने बोल दिया कल आपको ये याद करके लाना है वरना पनिशमेंट मिलेगा। तो बच्चा तो उसी में रह गया ना कि वो लिखा, नोट किया, वो क्रिएटिविटी कहाँ है क्लास में। देखिए उसी चीज के लिए एनईपी हल्ला कर रही है। अगर हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करें, उसमें एक वर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग, एक वर्ड है उसमें क्रिएटिव थिंकिंग, एक वर्ड है उसमें कम्युनिकेट इफेक्टिवली। और इसमें से जो आप बात कर रहे हैं, इसमें तो सारे वर्ड मिसिंग है सर। आपने कहा बोर्ड में से लिख करके उतारना है, वो भी साइलेंटली उतारना है, बोलने का अधिकार नहीं है सर। पनिशमेंट दे देंगे, तो मैडम पनिशमेंट दे देंगी। तो ऐसी जगह पर बच्चे का बौद्धिक विकास की आप कल्पना कर रहे हैं, तो आप गलत कल्पना कर रहे हैं। उस जगह आपके बच्चे का कोई विकास नहीं हो रहा है। बच्चा एक बहुत बढ़िया तोता बन के निकलेगा, और जिस तोते की एक अपनी लिमिट है सर, वो एक लिमिटेड ही शब्दावली याद कर सकता है, उसके आगे नहीं। तो जो बच्चा अपना कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, उस जगह के एजुकेशन सिस्टम में आपको इंटरवीन करने की आवश्यकता है, और वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। हर पेरेंट्स, हर विद्यालय का स्टेक होल्डर होता है, वहां जाकर के अपनी बात को रखे कि इस विधि से बच्चे को का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो वहां मतलब इस तरीके की चीजें जहां पर जैसे व्यास गद्दी नहीं है सर, इसको बिल्कुल व्यास गद्दी की तरह लिया जाता है कि व्यास बैठे। देखिए जहां व्यास गद्दी है, वहां पर लोग अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, लोग उनकी बात को सुन रहे हैं। अब स्कूल देखिए, बच्चा आप कह सकते हैं वहां भी स्वेच्छा से आ रहे, नहीं, वहां पेरेंट्स उसको भेज रहे हैं। तो दोनों में अंतर है। तो व्यास जब अपनी बात गद्दी से बोलते हैं, तो जितने लोग स्वेच्छा से आए, वो उनकी चॉइस है कि उसको कितना समझे। इधर स्कूल में बच्चा आ रहा है, कुछ सुबह रोते हुए आते हैं, कुछ को पेरेंटल प्रेशर के साथ भेजा जाता है। वहां वो माहौल टीचर को क्रिएट करना, और टीचर को व्यास गद्दी से उतार करके उन बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाना है अपने डिस्कशन में। मतलब मुझे नहीं बोलना है, वहां बच्चे मुझसे ज्यादा बोले, इस तरीके की विधि पे मुझे जाना है। तो आपकी ये समस्या भी हल हो जाएगी। मुझे बोर्ड से नहीं उतारना, बोर्ड पे तो वो एक पार्ट है, एक छोटा सा सिस्टम है, पर उससे बेहतरीन सिस्टम जो है वो ये है कि बच्चा इंटरेक्ट करना सीख जाएगा, बच्चा ग्रुप में काम करना सीख जाएगा, बच्चा अपनी बात कहना सीख जाएगा, बच्चा दूसरे की बात सुनना सीख जाएगा सर। आज की डेट में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी की हमें देख रहे हैं, शायद कोई सुनना नहीं चाहता किसी की बात को। मतलब कोई आपको स्मार्ट लिसनर्स ही नहीं मिलते हैं। तो वो स्मार्ट लिसनर बनेगा तभी स्मार्ट रिएक्टर भी बनेगा। जब बात पूरी एंड हो गई तभी तो अपनी बात कह पाएगा। आपने उसको क्या किया, ना तो बोलो ना सुनो, आप केवल बोर्ड से उतारो। तो इस तरीके की पद्धति को तो एनईपी में साफ साफ प्रतिबद्ध किया गया है, रोका गया है इसको। और अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो पेरेंट्स के बीच में ये मैसेज जाना चाहिए कि वो इसके बीच में जाकर के अपनी बात रखे स्कूल में, और उसमें परिवर्तन लेकर के आए। क्योंकि जिस तरीके के सिस्टम से अगर आज ये पढ़ रहे हैं, तो वो जो प्रेजेंट टेंस में जो जॉब है, केवल उसके लिए बच्चा तैयार हो रहा है। परंतु ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जो जॉब आज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कल नहीं होंगे। यानी जब बच्चा वो जॉब वाले उस पैटर्न पे आएगा, या कोई एंटरप्रेन्योर बनने के उस पार्ट पर भी आएगा, तो वो सब सिस्टम खत्म हो चुका होगा। और उस समय वो किसको कोस रहा होगा? उस समय के अपने टीचर को, जिसने वो चीजें उसे कभी बताई ही नहीं। तो उस तरीके से वो चीज भी आपके पहले प्रश्न से कनेक्टेड हो सकती है कि ऐसा विद्यालय चुने जहां इन चीजों का विकास आपके बच्चे के अंदर होता है। एक्चुअली जो पेरेंट्स देख रहे हैं, एनईपी एक वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आप उनके लिए थोड़ा सा शॉर्ट में समझा सकते हैं एनईपी को? देखिए बहुत शॉर्ट में तो ये देखिए, बेसिक फंडामेंटल्स जो इसमें लिखे गए उनको मत समझिए आप। पर जो बहुत बड़ा परिवर्तन एनईपी के अंदर किया गया है, उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है रेस्पेक्ट फॉर योर मदर टंग। और उस मदर टंग में, क्योंकि व्यक्ति को जिस परिवार में जन्म मिलता है, उस परिवार के अंदर बच्चा
जिस भाषा को सीख करके बड़ा होता है उसी भाषा में वो सबसे बेहतरीन समझ पाता है। परिवर्तन का युग आया, कॉन्वेंट्स में हम पढ़े और उन्होंने एक नई परिभाषा हमको दे दी कि हमें समझ में आए या ना आए, हमें अंग्रेजी में ही पढ़ना है और अंग्रेजी में ही पढ़ाना है। बहुत अच्छी बात है, किसी भी भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, पर अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह समझिए। और पर जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, साइंस को अगर आप यही नहीं समझ पाए कि प्लांट में जो रूट्स हैं किस तरीके से वाटर को लेती हैं और किस तरीके से उसको लीव तक पहुंचाती हैं, अब मैं इसको ही इंग्लिश में बोलता रहा और आपको ये पूरा फिनोमेना ही समझ में नहीं आया, तो आपका साइंस का टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा। तो जो एक सबसे बड़ा चेंज एनईपी के अंदर ये है कि अपनी मदर टंग में हम इसको एग्जिबिट करें। तो सबसे पहला बात जो पेरेंट से कोरिलेटेड है वो ये वाली बात है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो एनईपी का है, एनईपी ने एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन करना शुरू किया है सिलेबस के अंदर। ये हम सभी पेरेंट्स और टीचर, स्कूल सिस्टम सबके लिए बहुत हेल्दी साइन है। और उन्होंने हर विषय को रियल लाइफ से कनेक्ट करने का एक प्रयास किया है। और बहुत सारे ऐसे चेंज जिनको हम साइंटिफिकली कहते हैं, जैसे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लर्निंग आउटकम में कन्वर्ट किया है। पहले जो जितनी विधि थी, जितनी भी चीजें थी, सिस्टम थी, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ आते थे, यानी हमें पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब आज की डेट में आता है कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, यानी ये आउटकम पर बात हो रही है। तो एनईपी का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसने ऑब्जेक्टिव्स को आउटकम पर कन्वर्ट किया है। एनईपी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है असेसमेंट में, क्योंकि अब तक असेसमेंट क्या हो रहा है कि असेसमेंट की भी 3-4 परिभाषाएं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये तीनों एस्पेक्ट में असेसमेंट चलता है। एनईपी की एक गिफ्ट है कि जो हम कर रहे हैं, करते करते में जो हो रहा है उसी का असेसमेंट करे टीचर। अगर आपने मुझे लिसनिंग के या स्पीकिंग के मार्क्स दे रहे हैं, तो इफ आई वुड बी स्पीकिंग नाउ, so you may judge me because the one who would be recording us now, he can judge us like he's able to speak now. For that, it is not necessarily he's going to give me an essay which I will going to speak in front of him. If he can mark out that this gentleman is speaking very well, so I would have been assessed for that only. I should not be handed over a specific question paper or a specific assignment by which you will going to assess me for that. So that is the suggestion of NEP. तो करते करते मैं असेस्ट करो। एंड अनदर वाइटल कंपोनेंट ऑफ एनईपी इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, एचपीसी, जिसमें 360 डिग्री असेसमेंट की बात की, यानी मैं खुद अपना आंकलन करूं, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरा आंकलन करो, आपको जो मेरे टीचर पढ़ा रहे हैं वो आपका आंकलन करें, और जो माँ बाप जिन्होंने हमको भेजा है पढ़ने के लिए, जिनके साथ हम रहते हैं, वो भी हमारा आंकलन करें। यानी 90% मैं स्वयं अपना आंकलन करूं, 90% आप एज ए टीचर मेरा आंकलन करें, 90% जो मेरा मित्र है, जो मेरी मित्र मंडली है, वो मेरा आंकलन करें, और 90 डिग्री पर मेरे पेरेंट्स मेरा आंकलन करें। अगर 90-90-90 चारों को जोड़े तो 360 डिग्री होलिस्टिक असेसमेंट की परिभाषा ये है। यानी स्कूलों को बहुत बड़ा परिवर्तन करना है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स बच्चों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर के लिए लेकर के आनी है, तब जाकर के ये 360 डिग्री वाला जो असेसमेंट है, ये मॉडल भी एग्जिबिट हो पाएगा। तो मैंने कहा ना, अभी फेज चल रहा है एनईपी का, फर्स्ट फेज। इनमें जैसे जैसे बेहतर इसमें ट्रेनिंग होती जाएंगी, सिलेबस का रीडिफाइनिंग होती चली जाएगी, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके सामने आएगा और आप फील करेंगे कि एक बच्चा ट्रू सेंस में एडुकेटेड हो रहा है, अपने इंटरेस्ट में चल रहा है। अभी भी वो चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, पर हाँ, बहुत जहां ये जागरूकता आ गई है, जिन प्रिंसिपल्स में ये इंसाइट आ गई है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। एक्चुअली मैं पढ़ रहा था कि जैसे हमारे यहाँ बच्चा पहले तो नर्सरी हुआ करता था, आजकल फिर प्ले स्कूल, और मतलब 2 साल या 3 साल से वो पढ़ना शुरू करता है। कुछ कंट्रीज में मिनिमम एज जो है वो 5 साल है। बिल्कुल सही। फिर भी वो कंट्रीज क्यों आगे हैं हमसे? देखिए, ब्रेन की ग्रोथ जो है ना, आप देखिए 2 तरीके की चीजों को क्लब कर रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल कर रहे हैं और आप एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए, जितना अच्छा बच्चा परिवार के अंदर ग्रो कर सकता है, सीख सकता है, उतना अच्छा बच्चा कभी भी किसी भी स्कूल में जा करके नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बच्चे के बोलने के बिना वो बातें समझ लेती है, कोई भी टीचर बच्चे के बिना बोले उस बात को नहीं समझ सकता है। तो वो बच्चा आ तो रहा है स्कूल में, पर आपने जो अभी पहली बात की थी, बोर्ड से कॉपी करके लेके जा रहा है, ना तो आप अपनी बात बता पा रहे हैं और ना आप मेरी बात समझ पा रहे हैं।
तो वो उसका ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन है आप बताइए, उसमें उसका ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उठा कर, इसीलिए गवर्नमेंट दोबारा से अलर्ट हुई, दोबारा से हल्ला कर रही है। गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया ये सारी चीजें, और उन्होंने अब तो आप देखिए धड़ल्ले से कहा है कि क्लास फर्स्ट में बच्चा 6 साल का होना चाहिए। फिनलैंड सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन मॉडल के लिए जाना जाता है, वहां बच्चा 7 साल का फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है, आप समझिए। और फिनलैंड वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। एज में वो हमसे पीछे हैं, पर हाँ, सिस्टम में हमसे आगे। एक्चुअल में वो ब्रेन की ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं सर। आप बायोलॉजिकली कैसे चैलेंज कर सकते हैं, नेचर को चैलेंज कर रहे हैं आप यहाँ पर उठा करके। ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ नहीं और आपने कहा कि नहीं साहब कॉन्टर्स बनेंगे, आपने कहा नहीं साहब न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट हो रहा है और इससे करके बच्चे के अंदर इंक्विजिटिवनेस आएगी, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होगा, बच्चा दोस्तों के साथ रहना सीखेगा। अरे उस समय की रिक्वायरमेंट समझिए बच्चे की, उस समय की बच्चे की रिक्वायरमेंट क्लास फर्स्ट स्टैंडर्ड जब बच्चा 3.5 साल का बच्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट फ्रेंड सर्कल नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है वो अपने घर को समझे। आप क्लास में भी अगर वो आ रहे हैं, अगर आप उनके बुक्स को टर्न करेंगे ना, जो या उनके टीचर्स ने कोई मॉडल अपने आप डेवलप किया हो, या कोई वर्कशीट्स डेवलप किए हो, या कोई गेम प्लान्स किए हो, या इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप किया हो, तो उसमें डेफिनेटली यू वुड कम अक्रॉस द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच द चाइल्ड विल कम अक्रॉस, दैट इज फैमिली। एंड फैमिली वुड कैनॉट बी टॉट इन स्कूल, फैमिली कैन बी एक्सपीरियंस्ड एट होम। ये डिफरेंस है दोनों जगह का है। और फिर देयर लाइक इन द स्कूल अगेन द सेम काइंड, लाइक हिज बेसिक इंट्रोडक्शन विद द किचन। They're like in the school, they're introducing the child to the kitchen. Like, sir, like kitchen can be best introduced at home, sir. Why not this responsibility is being taken up by the parents, by the दादाजी, by the दादी जी। अब कोई रहना नहीं चाहता दादा दादी के साथ, नहीं तो पहले तो वही बता देते थे कि बेटा इसको गैस स्टोव कहते हैं, बेटा इसको आयरन कहते हैं, इसको बेटा यूटेंसिल कहते हैं, इसको ग्लास कहते हैं, इसको टम्बलर कहते हैं, इसको लेडी कहते हैं। वो सारी बातें वही बता देते थे जिसको आज स्कूल में पढ़ा जा रहा है। सी द आयरनी दैट किचन इज बीइंग टॉट इन स्कूल, the kitchen has to be taught at home, sir. They're like in those classes, their acquaintance is being done with the vegetables. Sir, vegetables का घर पे कराइए ना introduction. The child would better understand the color of the vegetable, taste of the vegetable, name of the vegetable. This is being done in school, sir. They are like you are teaching the child by doing stamp painting. They are like, this is the stamp printing we are done, like it's look like a mango, so ultimately it is. You are talking about a mango, it's blue, yellow in color. Like better, like the child should have mango at home, and the parents would better tell them anything which would have been taught at the pre-primary level, the more or less which is something which is happening in and around his family only. And it is an irony, those things which is happening in and around in the family is being taught in school, because this is kind of a model which has been released. So ultimately it has been done like that, although that अब उसका नया वर्जन भारत सरकार ने रिलीज किया बाल वाटिका के नाम से। अब देखिए नाम भी बता रहा है, किंडरगार्टन और बाल वाटिका दोनों में बहुत बड़ा अंतर है एक्चुअली। वो बच्चे की अपनी वाटिका जोड़ा उसको घर से ही है सर। वाटिका का अगर शब्द देखेंगे वो रूट से जोड़ने की बात करने के, और उन्होंने इसलिए उसका करिकुलम में दिया। उसने कहा अभ्यास कराओ, एक्सरसाइज कराओ, उस तरीके की चीजें, खाने की हैबिट्स पर बात करो। इस तरीके का नया करिकुलम बाल वाटिका के लिए डेवलप किया गया। अपनी पंचविधि पे ले जा रहे हैं दोबारा से बच्चे को उठा करके। आपकी किताबों में साफ साफ लिखा है कि उनका पढ़ाने का तरीका, उनका ये सब बिल्कुल एंशिएंट मॉडल पे ले जाने की बात कर रही है। तो वो चीज कराओगे तब तो फ्रूटफुल है। बट आप अगर उसको वही रूट लर्निंग वाले एस्पेक्ट्स पे बात करोगे, वही फेमिलराइजेशन वाले एस्पेक्ट पे बात करोगे, तो सर फिर कोई प्री प्राइमरी, फिर आई डोंट थिंक सो दैट दिस वुड बी एन अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर द चाइल्ड। दैट अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर द चाइल्ड इज वेयर द चाइल्ड वुड लर्न समथिंग बियॉन्ड दैट, and that beyondness is the child must understand the definition of love, the child must understand the definition of cooperation, the child must understand the definition of peer support, the child must understand the definition of empathy, sympathy. ये सारे इन फैक्टर्स पर अगर बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑफ कोर्स that would be a best place where like we have to. But otherwise, apart from that, like to make a child to understand that this is called a lady, or this is called spoon, or this is called tumbler, so I don't think so that we should admit that. This is the reason only we are lagging behind from the many of the developed countries, those who are doing wonderful in education. तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पुराने टाइम पर गुरुकुल चला करते थे जिसमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी, वो हमसे एडवांस थे। That's what like we are doing same. We are doing the same. Like अगर आप उसको ध्यान से देखें तो it is purely based on experiences,
And experiential learning is a new aspect. When you, if you will do Google and you would search that what are the best practice of teaching in the school nowadays, so you will come across out of 10, one would be experiential learning. So that from where this experiential learning has come, this experiential learning has come from Gurukul Paddhati. Another aspect you would come across, that is called differentiated learning. What is this differentiated learning? That is purely a Gurukul Paddhati. गुरु नोज वेरी वेल, इसलिए उन्होंने अर्जुन को ही धनुष सिखाया, धनुर्विद्या सिखाई थी, भीम को गदा विद्या सिखाई थी, और युधिष्ठिर को उन्होंने भाला सिखाया था। अरे भाई, अगर वो आज के मॉडल के हिसाब से होते तो सबको सिखाया जा रहा होता। डिफरेंशिएटेड लर्निंग का एस्पेक्ट इसलिए तो आया। डिफरेंशिएटेड लर्निंग क्या कहती है? जो चीज जिसकी है उसी फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट करो और वो एस्पेक्ट दो। तो गुरु के अंदर वो आंखें थी, उसने रीड कर लिया था कि अर्जुन ही धनुधारी बन सकता है, गदाधारी नहीं बन सकता, और भीम धनुधारी नहीं बन सकता, वो गदाधारी बन सकता। एक्चुअली दोनों को एक जैसा पढ़ाते तो ना भीम बन पाता ना अर्जुन बन पाता। बिल्कुल, को सब कुछ सामने रखा, देखने की जरूरत है, इसलिए उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है, और वही अडॉप्ट कर रहे हैं आज की डेट में। एक्चुअली जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, उसमें से टीचर बनने का उनका ड्रीम है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है कि इफेक्टिव टीचर कैसे बने, क्लास में बोरियत खत्म करें, बच्चे इंगेज रहें और बच्चे प्यार करें टीचर को? देखिए, सबसे पहला काम ना, आप सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो और अपने प्रोफेशन से प्यार करना सीखो। टीचर के पार्ट पे सर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज की डेट में, जो कुछ नहीं बन पा रहा वो टीचर बन रहा है, और जो वास्तव में अपने आप में मन से और भावना से टीचर बनना चाहता है तो उसको ये सब चीजें पढ़ाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी कि तुझे क्लास में कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों को एंगेज कर पाएगा और कैसे तुम सबका चहेता टीचर बन पाएगा। क्योंकि चहेते की परिभाषा क्या है सर? चहेते की परिभाषा है कि बच्चों के अनुसार चीजों को डिलीवर करना। यही तो एनईपी बोल रही है, यही सारे एजुकेशनिस्ट बोल रहे हैं। और एक अच्छा स्मार्ट टीचर करता भी क्या है? बच्चों की इच्छा के अनुसार कैसे? उसने वो एग्जाम्पल्स ही वो कोट करेगा जो बच्चों की जिंदगी के एग्जाम्पल्स हैं, वो बात ही नहीं करेगा। एक टीचर ने बोला कि लाइक आई वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो द टीचर हैज रिटन अ डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन and he has written a definition of proper noun, and in the next class itself I have observed that एक टीचर खड़ा हुआ, उसने बोला कि all girls please stand up, तो उसने सारी गर्ल्स को खड़ा कर दिया। नाउ देखिए, सी द डिफरेंस, ऑल गर्ल्स स्टैंड अप। उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो शी सेड माय नेम इज अनुपमा। ओके, लाइक नाउ अनुपमा विल रिमेन स्टैंड अप, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स विल सिट डाउन। So see the difference, you will come across with the difference. So now Anupama will sit down and rest of the girls will stand up. So Anupama will sit down. So it means like Anupama is not common, Anupama is proper. That's what, like Anupama is sit down and rest of the girls stand up. So in a way that how that she dealt with, she has dealt with whatever is happening in and around. खड़ा होना बैठना, खड़ा होना बैठना, एक तो बच्चों को engage कर दिया, अब सारे बच्चे engage हो गए, फिर सारे बॉयज बैठ जाओ, सारे गर्ल्स खड़ी हो जाओ। तो उन्होंने ये भी डिफरेंस करा दिया कि अब सारे बॉयज खड़े हो, अब एक नहीं खड़ा हुआ, सारे बॉयज खड़े हुए। तो इट मींस लाइक ऑल बॉयज आर कॉमन, दे आर नॉट प्रॉपर। So like out of boys, like if somebody whose name is Anil, he will remain stand up and rest of the class will sit down. So now whole class is a common now. But like in which class I am teaching now? Fourth, that is called proper now. So the way the person who has delivered means like बच्चा चाहता है कि like he should be given an opportunity in the class where he can have words with themselves also and with the teacher also, and he wants the relevance of the content in the life. Until unless वही एक टीचर चहेता बन पाता है जो टीचर उनको रेलेवेंस बता दे उन चीजों की जिंदगी में। हम और आप आज तक कंफ्यूज है, मैं आपसे भी बता बोल सकता हूँ, अगर लाइक आप 6th स्टैंडर्ड में जब सबसे पहली बार हम लोगों को अलजेब्रा इंट्रोड्यूस किया गया था, हमें आज तक नहीं मालूम। आज हम बोलते हैं हम बहुत बड़े टीचर हैं, हम पढ़ाते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई लिखाई का 5% 6% अब सीख भी गए, पर हमें आज भी हमें नहीं मालूम कि अलजेब्रा क्यों पढ़ाया गया था सब 6th स्टैंडर्ड के अंदर। पढ़ा था बस, हमें आज भी उसका प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं मालूम है। पर आज का बच्चा एक्चुअल में जो हम देखते हैं ना डिसएंगेज्ड है क्लास में, उसका रीजन ये है कि उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत फास्ट है और वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक वो किसी चीज को स्वीकारता नहीं है। तो वो सेटिस्फाइड जब होता है जब आप उसकी रेलेवेंस बताओ उस चीज की। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका रेलेवेंस बताइए, देखिए आप चहेते टीचर बनेंगे। और जहां आप दुनिया का हर व्यक्ति आ रहा है क्लास में, नाउ आई विल गोइंग टू स्पीक, नोबडी विल गोइंग टू स्पीक इन द क्लास, उसका एक अपोजिट व्यक्ति आ रहा है क्लास के अंदर, लाइक आई विल नॉट स्पीक, आई वांट माय ऑल स्टूडेंट्स शुड स्पीक इन द क्लास, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी वेयर लाइक यू कैन लुक बैक आल्सो,
I am giving you an opportunity that you can change your seat also. I am giving you an opportunity that you can discuss and give me an answer by yourself. I am giving you an opportunity that if you will go to speak, I'll give you like you will be assessed also. There will be no separate date for the assessment. अब देखिए इस तरीके का टीचर क्लास के अंदर जाएगा तो उसको लोग पसंद करेंगे, या सर जो मेरा जैसा क्लास में जाएगा वो कहेगा कोई नहीं बोलेगा, सब चुप रहेंगे, सब मुझे सुनेंगे, डरेंगे उससे, और डरेंगे उससे, उसके प्रति लव कहाँ आएगा। तो मेरा नाम कभी भी चहेता टीचर में नहीं आएगा और मैं इंगेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अकेला सामने 40 बच्चे, 30 बच्चे, 32 बच्चे, 35 बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनको कैसे, और 35 बच्चों की नीड को मैं कैसे समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बोलने की अनुमति नहीं दी। दुनिया के अंदर कोई ऐसा मेथड बता दीजिए, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जो कि बिना क्वेश्चनिंग के हो जाता हो। अगर आप इफ यू वांट टू नो अबाउट समबडी, इफ यू वांट टू नो व्हाट द पर्सन नोज, देयर इज ओनली वे इन द वर्ल्ड, दैट इज क्वेश्चनिंग ओनली, एंड क्वेश्चनिंग इज बैंड इन द क्लास। Where like only I can ask the question, but nobody else in the class can ask the question. Where like it should be opposite of, where like 30 students should be given an opportunity to ask. If I don't know the answer, my rest of my friend would be knowing that answer. Like give them, like if the student is throwing question to me, instead of answering by myself, I should ask better like anybody else who can help me out in that. So you will find that rest out of 29, maybe 2 would be knowing the same answer. And when you give them an opportunity to answer in the class, your 21st century one challenge is over. That is called communication. When they communicate, and one more thing which I told you about, that love, cooperative learning, group में काम करना, peer learning, ये कैसे आ रहा है? Because now they are amicably developing the solution for the problem. And वो class में आपको कभी नहीं कहना पड़ेगा यार listen to me carefully, because there everybody is listening you carefully, sir. And why they are listening you carefully? Because you have been given a due respect in the class. बच्चे के आंसर को रेस्पेक्ट मिल रहा है, बच्चे को बोलने का रेस्पेक्ट मिल रहा है, बच्चे को बोलने का रिवार्ड मिल रहा है, तो वो टीचर पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सर एंगेजिंग क्लास हो गई कि नहीं हो गई? वो खुद ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। ऐसी क्लास ही आज की डेट की नीड है, उसको ही स्मार्ट टीचर बोलते हैं। उसको सर किसी स्मार्ट बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप में स्मार्ट है। थोड़ा और मैं आगे क्लासेस पर चलता हूँ, जैसे 9, 10th, 11, 12th, आजकल एक ट्रेंड है कि हर किसी को नीट और जेई की प्रिपरेशन करनी है। पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, जैसे कोटा चले गए, दिल्ली चले गए, फिर हम लोग सुनते हैं कि वहाँ हादसे हो गए। उन बच्चों की क्या गलती, उन पर तो थोपा जा रहा है ना ये प्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन का मेजर रीजन ये है सर, पेरेंटल एक्सपेक्टेशन, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। पड़ोस का बच्चा आईआईटी चला गया तो इसलिए मुझे जाना है सर, मेरे पेरेंट्स का भी वही एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। उसका हर एक कोई सर उसके पीछे मैं बताऊं आपको, मैंने अभी एक डेफिनेशन आपको दी थी, फर्स्ट जनरेशन पेरेंट, सेकंड जनरेशन पेरेंट एंड थर्ड जनरेशन पेरेंट। थर्ड जनरेशन पेरेंट्स के केस में यू विल फाइंड दीज थिंग्स एट मिनिमम लेवल, बिकॉज दे नो everybody cannot become doctor, everybody cannot become engineer, and but like the when first generation parents, from where they learn from the society only। यार ये आज सारी लग्जरी एंजॉय कर रहा है लाइफ में, ये बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में, यार बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो उसके दिमाग में सेट हो जाता है किसी भी, क्योंकि आदमी एक्सपीरियंसेस से सीखता है, आदमी एक दूसरे से देख के सीखता है। अब उन्होंने देखा जब when they have come into the city और when they have come across with any kind of smart person, और कुछ नहीं तो मानो डीएम ऑफिस गया, डीएम से इंस्पायर हो गया, अब उसने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रख ली कि तुझे डीएम बनना है। अब उसको नहीं मालूम कि डीएम बनना नहीं है उसको जबकि एक्सपेक्टेशन क्या, तुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, और उसने एक्सपेक्टेशन क्या रख रखी, तो डीएम बनना है भाई जिंदगी उठा करके, क्योंकि उसने देखा जाकर आईएएस नहीं, डीएम बनना है उसने, क्योंकि उसने जाकर के देखा कि डीएम उसको अट्रैक्ट कर गया। अब वही एक्सपेक्टेशन ला देगा। अब उस जगह जरूरत है सर काउंसलिंग की। हमारे देश के अंदर जो एक अनदर जो नीड अराइज हो रही है ना, वो प्रॉपर काउंसलिंग की नीड अराइज हो रही है। बच्चों की काउंसलिंग से, बच्चों को खुद दूसरे कैरियर ही नहीं पता। आप 10th के बाद 11th में मारा मारी है सर, लाइक आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड, आई इवन डोंट एग्री विद दिस कि anyone can do anything anytime in their life. It is a matter of time when thing clicks and the person will be able to do it. Nothing is beyond the human brain. वो सब हो सकता है, but sir unnecessarily they are fighting. I am observing that when I interact with them, and I am observing the child has a very good very good communication skills. Child has a very good acumen of creating something of his own. अब वो जबरदस्ती उसको पढ़ना है कि like I want to go for sciences only sir. अरे तुमको why don't you do mass communication sir? Why don't you go for commerce? Why don't you go for humanities? Why not, like the NEP suggests, the variety of combination to be offered to the child? The reason being is every child is a different child. Every child is a unique child. He is born with a unique talent.
So why not this talent should be given here so that he may rise in his life. So that is needed in this moment. तो वो अपने आप आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा. प्रॉपर काउंसलिंग हो, प्रॉपर स्कूल के अंदर ऐसे मैकेनिज्म हो जहां पर बच्चों को बताया जाए कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैरियर्स, बिकॉज वी हैव ओनली 2 कैरियर्स इन फ्रंट ऑफ अस, लाइक इधर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, इसके अलावा हम तो सोचते कैरियर ही नहीं है. Yesterday only, like I have come across with a girl child, and she was arguing with me, like sir, like I have been offered biology with psychology. So like what I will do, sir, after my 12th? Like of course you can go for BSc with biology honors. बोला सर like ये कैसे possible हो सकता है? How the college will go to offer me? मैंने कहा now of course BSc honors there is a possibility where you may go for it. तो और फिर चलो एनी हाउ बोला चलो सर बीएससी जगह, देन व्हाट एल्स आई कैन डू इन माय लाइफ. तो मैंने कहा व्हाट एवर द अदर्स कैन डू इट. मैं यू कैन आल्सो राइट एसएससी एग्जामिनेशन, यू कैन आल्सो राइट पीओ एग्जामिनेशन, यू कैन आल्सो राइट आईएएस एग्जामिनेशन. व्हाट एल्स यू कैन आल्सो बिकम, यू कैन डू एमबीए, एक्सेप्ट इंजीनियरिंग यू कैन डू एवरीथिंग. तो ये चीज क्या बताती है आपको? ये चीज अभाव बताती है कि बच्चे को एक्वेंटेंस ही नहीं है, उसका कोई इस तरीके का कहीं कोई कैरियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज ही नहीं. अगर बच्चे को 9, 10 जहां से फंडामेंटल बेस स्टार्ट होता है, 8 के बाद हम 8 को मिडिल स्कूल बोलते हैं और 9 से हम सेकेंडरी स्टेज शुरू करते हैं. सेकेंडरी स्टेज पर ही हमें ये काम कर देना चाहिए जिससे कि बच्चे का एक जो संकुचित दायरा है ना वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में बने, उसको पता लगे देयर आर हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ द जॉब्स आर वेटिंग फॉर मी इन द वर्ल्ड, so that then he will not go to fight for it, then he will not come across with these kind of things, because he may also speak to the parents that like papa I can do better in this field also. और लोगों को आपने देखा भी हो, अच्छा आपने देखा सबसे ज्यादा आईएएस डॉक्टर बन रहे हैं, अरे यार तुमको डॉक्टर आईएएस बना था, डॉक्टर क्यों बने? ये क्वेश्चन नहीं आपको कभी कभी हिट करता है? बिल्कुल करता है. आईआईटीएन सबसे ज्यादा, अरे तुमने क्यों जगह घेरी यार किसी एक बच्चे की? आपने आईआईटी भी कर लिया हो, यूपीएससी बताओ आईआईटी में जगह नहीं घेरी होगी उसने, बिना बात एक जगह घेर लिया आपने वहां जाकर के. यार उस बच्चे की जगह किसी और को ले लेते, वो इंजीनियर बनता, वो क्योंकि उसे इंजीनियर बनना था. आपको एक्चुअल में इंजीनियर नहीं बनना था, आपको तो सिविल सर्वेंट बनना था, तो आपने जगह घेर ली वहां उठा करके. आपको डॉक्टर नीट की आपको पता ही, देयर आर लिमिटेड सीट्स इन द कंट्री, and where like one seat has been unnecessarily been occupied by a person who don't want to become a doctor, he want to become a civil servant like. So क्यों कर रहे हो? मतलब वो लोग भी जो मतलब आज सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे, वो क्लियर नहीं है अपनी लाइफ के अंदर. रीजन क्या है? वो इसलिए क्लियर नहीं है कि उनको they have not been counseled properly, they have not been given a career guidance at the time when they need it. It's their mind which who set the ways for themselves. So they were very good in schools, so they did well and they cracked the entrance examination and they get into it, and their later stage they realize that they are not meant to become a doctor. वो क्यों? Because when they reach to the college and somebody he may come across with that kind of person who would have counseled him. निक्के ले लीजिए आप मेरी बात को, उनका किसी ने दोस्त ने काउंसलिंग किया होगा, किसी ने टीचर ने काउंसलिंग किया होगा, या ग्रुप में जाकर उसने रियलाइज किया होगा कि ये काम तो मैं बहुत अच्छा करता, तब उसने अपना रास्ता चेंज किया है. नहीं तो अगर डे 1 में अगर उसका सेट होता है ना, तो वो पक्का डिसाइड करता है कि आई वुड गो फॉर द सिविल सर्विसेज विद दीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. तो वो बहुत जरूरी है. जब ये खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे प्रेशर्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को भी वैरायटी ऑफ जो जॉब एवेन्यूज है, गवर्नमेंट को भी ब्रॉडकास्ट करना चाहिए सारी चीजें कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ दी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बना रखे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिलना चाहिए कि दे में स्टार्ट टेलिंग द पब्लिक दैट इट्स नॉट ओनली 2 or 3 जॉब्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड और इन द कंट्री, देयर आर वैरायटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड. अब आप ये मेडिकल सब्सक्रिप्शनिस्ट होते हैं, इवन नोबडी नोज इन द प्लेस. जो अमेरिका में मेडिसिन लिखी जाती है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, वो जॉब मार्केट में अवेलेबल है. डेटा एनालिस्ट कौन जानता है कि लाइक व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट? इट इज द नीड ऑफ एन आवर. एआई, दुनिया ने एआई पकड़ लिया था, एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड एआई नाउ. तो कल एआई में भी स्कैरसिटी हो जाएगा, बिकॉज बट नाउ एवेन्यूज आर कमिंग अप यार. वेट फॉर दैट एंड लेट इट बी ब्रॉडकास्टेड, let it be come into the public will be able, then the parents insight will come and then they will not going to compel the child to become engineer. फिर कोटा फैक्ट्री बंद हो जाएगा. आप इतने सालों से एजुकेशन में, कई बार आपके पास ऐसे केसेस आए होंगे, पेरेंट्स से बोला कि ये हमारी नहीं सुनता है, आप इसे समझाइए. एक्चुअली वो वर्ड आपको परेशान नहीं करता है, वो पेरेंट्स है. टीचर के पास वो 6 से 7 घंटे रहता है, बाकी टाइम पेरेंट्स के पास रहता है, फिर भी वो पेरेंट्स की क्यों नहीं सुन रहा है?
एक बड़ा बेसिक सी कहावत है, घर का जोगी जोगना अनगाम का सिद्ध सर। तो वही वाली बात है। और कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, कोई बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है जो हमको इंस्पायर कर जाती है। तो ये कई बार होता भी है कि वो पेरेंट्स की नहीं सुन रहा है, पर उसने एक बार प्रभाकर चौधरी जी को जाते हुए किसी ने देख लिया। एक बच्चे का ही केस बता रहा हूँ। तो सर का नाम तो मैंने ले लिया है। आप आईपीएस हैं और बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी है, मतलब देखने से भी और बोलने से भी सर। और वो बच्चा मेरे साथ खड़ा था, मतलब सर जा रहे थे तो रोक दिए गए थे, भाई सर निकल रहे हैं तो रोक दिया जाएगा ऑब्वियसली, एक आईपीएस जा रहे हैं, एसएसपी हमारे सिटी के एसएसपी थे, तो रोक दिए गए, साथ में खड़े। वो बच्चे ने बोला सर बनना तो यही है। क्या बंदा है सर, मतलब। और उनके वर्ड्स जो थे वो मैं कैमरे में हो रहा रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा में आपको बताऊंगा। तो वो मतलब उस बच्चे के वर्ड थे ना, उसने मुझे हिला के रख दिया। मतलब तो ये लाइफ के अंदर अब जब वो एसएसपी सर यानी प्रभाकर चौधरी सर उस बच्चे को बताएंगे ना, पेरेंट्स बताएंगे, तो किसकी बात फॉलो करेगा सर? वो अपने हीरो की जो अपने हीरो की बात है। तो वो कभी वो सिचुएशन ऐसा होता है कि कई बार हम बच्चे की नजर में हीरो बन चुके हैं, अब वो अपने हीरो की बात मानेगा, अब वो पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा। और एक और चीज होता है, पेरेंट्स के पास क्या होता है, लव विद डिसिप्लिन होता है। वो प्यार भी करता है, डिसिप्लिन के साथ प्यार करता है। टीचर के साथ में ये सारी बाउंड्रीज नहीं है एक्चुअली में। मतलब टीचर भी प्यार करता है, वो भी डिसिप्लिन के, पर उसके साथ एक और एस्पेक्ट और जुड़ा होता है, वेयर लाइक ही कैन गिव देम लिबर्टी टू एंजॉय, जो पेरेंट्स चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। उनको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, और टीचर क्या करता है, वो उन लिबर्टीज को भी देता है साथ साथ, क्योंकि उसे मालूम है कहाँ रोकना है। मतलब वो जैसे आपने देखा चैनल को हम ट्यून करते हैं, बटन दबाते हैं कि सब ट्यूनिंग चल रही है, तो टीचर ट्यूनिंग का काम भी बहुत अच्छे से करता है। तो और वो जब उस दौर में पेरेंट्स का, इस क्वेश्चन का एक और आंसर, बहुत बेहतर आंसर है, वो है कि पेरेंट्स का ना इंटरेक्शन बच्चों के साथ नहीं है सर। वो 18 घंटे और ये 6 घंटे, बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो 3 टाइम्स है, ये 1/4 है, परंतु इस 1/4 में इंटरेक्शन हो रहा है सर। उस 3/4 में इंटरेक्शन नहीं है। या तो बच्चा सो रहा है, या ट्यूटर के पास है, या खाना खाने में बिजी है, या मोबाइल के साथ बिजी है, या टीवी के साथ बिजी है। पेरेंट्स के साथ कहाँ बिजी है, ये बता दीजिए आप। स्कूल में खुद ही टाइम नहीं है, खुद ही के टाइम नहीं है, वो इंटरेक्शन नहीं है। इसीलिए उन्हीं पेरेंट्स के साथ ये केस आता है कि हमारी नहीं सुन रहा। जिन पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ जैसा टीचर का इंटरेक्शन है वैसा ही इंटरेक्शन है, वो पेरेंट्स आपके पास नहीं आते, क्योंकि उनकी नजर में उनका पापा ही हीरो है, उनकी मम्मी ही हीरो है उनकी नजर में। पर वो क्या होता है, वो तो मैंने इसी लगा रखा अपने बच्चे की क्लास में, मैं अपने घर में इसको देखिए सर, इसका बेड देखना सर, इसके लेवल का तो बेड नहीं होगा सर, इसको मैंने स्कूटी दे रखी है पढ़ने के लिए, जाने आने के लिए। मतलब ऐसी कौन सी सुविधा जो मैंने अपने बच्चे को नहीं दे रखी, उनका रोल पूरा हो गया सर। रोल वो नहीं है सर, वो बच्चे को सर ऐसे बड़ा होते हुए देख रहे हैं, और बच्चे को कैसे बड़ा होता देखना है, ऐसे बड़ा होता देखना है। तो जब ऐसे बड़ा करोगे तो आपका बच्चे के साथ इंटरेक्शन होगा। टीचर की बात क्यों मानता है मालूम है, जिसके साथ संवाद होगा सर उसी से तो बात मानेंगे। कल आज मैं परेशान हूं तो आप मुझे कैसे मेरे को कंसोल करेंगे सर, आप बताओ। आप मुझसे बात ही तो करेंगे, आप मेरी पीड़ा को समझेंगे, उस पीड़ा का समाधान देंगे, यानी बात करके ही तो आप मेरी बात को मुझे सेटिस्फाई करेंगे। अब जो संवाद ही नहीं है तो सर आप मुझे कैसे कर देंगे, मैं आपकी बात ही क्यों मानूंगा सर। वही हो रहा है, उनके बीच में संवाद का अभाव है, और टीचर और बच्चे के बीच में संवाद का अभाव नहीं है। और वो हर टीचर के लिए नहीं कहेगा आपके पास पेरेंट्स आएंगे, वो किसी एक का नाम लेगा कि साहब ये उनसे कहलवा दो, उनकी बात मान ले। कारण वो वही प्रभाकर चौधरी जी हैं जो उसका हीरो है वो एक्चुअली। तो वो उस रोल में जब इसलिए होता है, और अगर पेरेंट्स को हीरो बनना है तो वो देखिए, जब अपने आपको आप एग्जिबिट ही नहीं कर पाए अपने बच्चे के सामने, तो बच्चे को क्या मालूम है कि आप हीरो हैं सर। जब आप एग्जिबिट करेंगे अपने आप को, आप अपनी जर्नी के बारे में बात करिए पेरेंट्स से, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करिए। अपने आप ये सोचिए मेरा जॉब का काम है, व्हाई शुड आई शेयर इट विद माय फैमिली? नो यार, like when you will be at pain in your job, you don't share with your family, you used to share. Why not you share your joyness? Why you should not share your happiness with the family at office, where like with the office, like when you enjoy it, when you've been promoted, when you have been appreciated by that, why don't you express those things? यार आज मेरा बड़ा बॉस ने मुझे आज चलो सब मिलके खाना खाने चल रहे हैं, तब करना चाहिए ना उस टाइम में। जब परेशान हो गया यार बॉस बड़ा बेकार आदमी है यार, आज ने बिना डांट दिया हमको उठा के, वो तो आपने बता दिया, यानी कष्ट तो वो झेलेंगे, हैप्पीनेस दूसरे झेलेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे आप। तो वो सारे काम बच्चों फैमिली के साथ हर चीज में आप शेयर करिए, आप हीरो बन जाएंगे। फिर ये सवाल करना प्रिंसिपल से या किसी टीचर से कोई पेरेंट करने नहीं आएगा। अच्छा, आपके इतने साल मतलब इतना बड़ा जो करियर रहा है आपका, ऐसा कोई केस आया है कि
पेरेंट्स ना बच्चे की सुन रहा है और आपको भी समझाने में बड़ा टाइम लगा हुआ है कन्विंस करने में। हाँ, कोई ऐसा एक केस हो ऐसा आप बताएं। केस, बहुत अच्छा केस मैं आपको बता देता हूँ। बच्चा, when I was working with Kana Makhan only, and like the parent was satisfied, he was agreed with my decision that he can be given commerce, and but like sir, like my son is not ready to accept this fact. Even like I tried a lot, even I took him to one of my biology teacher, and like the biology, I believe more on my on that person, on like better than me. I used to treat that he can counsel better. In fact, that he did counseling, and even that his counseling had failed, and afterwards what is happening that the child insisted upon and he took the science. तो ये भी केसेस होते हैं जहाँ ना पापा की बात मानी ना मेरी बात मानी, बट लाइक लेटर ऑन, लाइक वो सबसे बड़ा मेरे लिए जिंदगी का दिन वो जब बना जब वो बच्चा आया और उसने मेरा पैर छुआ, सर मेरा नाम अमित शर्मा है। तो मैंने कहा हाँ बेटा होगा, अब बच्चे बहुत पढ़ा है सर, अब नहीं याद आया। बोला सर मैं वही बच्चा हूँ जिसको पापा को आपने समझा दिया था कि इसे कॉमर्स दे दो, और मुझे मैं आपकी बात से एग्री नहीं हुआ था, और आज की डेट में मैं आईएएस बन गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से वो बच्चा, और आज की डेट में वो जयपुर रेलवेज को का डीआरएम है। तो वो ऐसे भी मेरी जिंदगी के अंदर मैंने केसेस देखे, ऐसे बच्चों से गुजरा जिनको मतलब हम ये सोचते थे कि यार कैसे भी करके 10th के बाद ये स्कूल छोड़ दें, वो आज की डेट में सीए हैं, दर्जन भर हैं सर, जिनके पेरेंट्स की बात नहीं सुनी उन्होंने, कभी हमारी बात नहीं सुनी, पर आज की डेट में लाइफ में सक्सेस। मैंने कहा ना, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम सर। एक अच्छा पर्सन बनना और एक अच्छा ज्ञानी बनना सर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो वो उन्होंने सब्जेक्ट पे कंट्रोल कर लिया बाद में जा करके, तो उन्होंने सीए निकाल दिया, वो सीए बन गए अच्छे से। तो वो सब, वो तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम सर, कब किसका छठी इंद्रिय खुल जाए और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। मेरा आखिरी सवाल था सर, आपकी तरफ से कोई गुरु मंत्र स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को? मेरा तो सर एक ही है, देखिए देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द लाइफ सर। ये बहुत जो आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है ना, वेयर लाइक इवन व्हेन आई इंटरेक्ट विद माय ओन सन आल्सो, व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट माय स्टूडेंट्स आल्सो, so they used to put forward me so many things in their life which is purely a shortcut. So there is no shortcut for the life. You have to work hard, and when you work hard then only you can realize your own potential. नहीं तो आपको कभी अपनी जो काबिलियत है ना, जो आपका अपना रियल पोटेंशियल है, वो भी आपको कभी नहीं पता लगेगा सर। वो जब ही पता लग पाएगा जब आप स्ट्रगल करेंगे उठा करके। तो जैसे बोलते हैं ना कि रास्ते भी जिद्दी हैं और मंजिलें भी जिद्दी हैं, पर उनको ये नहीं पता कि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। तो ये दोनों तीनों चीजें मिलकर के चलेंगे ना, तो मंजिल के अपनी बहस करें, रास्ते अपनी बहस करने दो, आप अपने रास्ते में अपने ऊपर हौसलों को भी साथ भी बहस करो, तो मंजिल आपको पक्का मिलेगी। लेट हो सकती है, और उसमें मैं हर टीचर डे के दिन एक मैसेज देता हूँ, वही आपके थ्रू एक मैसेज और देना चाहूंगा लास्ट में यहाँ पर उठा करके। हम ना अपना भविष्य नहीं जानते सर, कितने भी भविष्य ज्ञाता हो क्लेम करते हैं कि हम बता सकते हैं, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि गॉड हमें फेवर नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, गॉड को ना हमारा एक्चुअल डेस्टिनेशन पता है सर। तो हमारे एक्चुअल डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए गॉड को हमारी प्रेजेंट प्लानिंग फेल करनी पड़ती है सर। और जब तक गॉड हमारी प्रेजेंट प्लानिंग फेल नहीं करेगा ना, तब तक वो न्यू प्लानिंग सेट नहीं हो पाएगी। तो हैव अ फेथ इन गॉड, हैव अ फेथ इन योरसेल्फ, हैव अ फेथ इन योर फैमिली, हैव अ फेथ इन योर फ्रेंड्स, एंड अल्टीमेटली जो आपका डेस्टिनेशन फिक्स है उसके लिए भगवान आपसे मेहनत करवा लेगा, शॉर्टकट में नहीं देगा सर। ये आप सोचो कि वो ऐसा कोई चाल बदलेगी किसी ग्रह की और आपको मिल जाएगा, नहीं। भगवान उसके लिए आपसे मेहनत करवा लेगा। आपसे बेहतर कौन जानता होगा, भगवान श्री कृष्ण एक दिन में अर्जुन को जिता सकते थे, एक दिन में जिता सकते थे, और शायद एक दिन भी मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, पलक झपकते ही जिता सकते थे, परंतु उन्होंने सारे कर्म करवाए भगवान। तो वो जो संदेश था कि कर्म के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो उसलिए आप प्रिपेयर रहिए कि स्वयं ठाकुर जी भी अगर आपके रथ पे विराजमान है तो वो आपसे मेहनत करवाएंगे ही, तभी आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी अच्छी जानकारियां मिली मुझे भी और हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई बिजी शेड्यूल नहीं होता है सर, ये टीचर का काम ही इंटरेक्ट करने का है, और वो इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए बस किसी भी तरीके से। सामने से सवाल आए उत्तर जाए, आपके सवाल आए सामने से उत्तर आए, इस तरीके की पद्धति के साथ जिंदगी बहुत आसानी से गुजर जाए। थैंक यू सो मच। आप लोग देखते रहिए समाचार 24, फिर मिलेंगे एक और शो में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए।